A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in today's video, we discussed the two important practical problems related to the not-for-profit organization and the introduction of partnership form. So one by one, let's we take the one question from not-for-profit organization and we solve it, and thereafter we take the one question from the fundamental of partnership firm, that is the introduction of partnership firm, and we will solve it in this video. So the first question, as you can see that on your screen, question number 35, question number 35 on your screen, which are related to the not for profit organization. यानी बेसिकली जो ये क्वेश्चन है वो रिलेट करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन? The following is the receipts and payment account of the Rajasthan Society for the year ending 31st March 2018, and the information are as follows. To balance BD 3000, to subscription area 600. Area means previous year का था, हमें इस साल मिला है 600. current year आपको 70,000 मिला है and advance मिला है 500. It means total subscription received during the year, that is a 71,100. Donation 17,500. Entrance fees 15,000. Endowment fund receipt 14,000. Life membership fees 6,000. Rent of the hall 8,700. Grant from local authority 4,000. Proceed of charity show 16,800. Sundries 1,200. And last is to interest on investment is 2,700. If you are talking about the payments in the receipts and payment account, so you know very well debit में receipts record होते हैं, credit में payments record होते हैं. तो क्रेडिट में क्या क्या है? हॉनोरेरियम टू क्लर्क 10,000, इट इज एन एक्सपेंस. बाय कॉस्ट ऑफ कार, कार आपने परचेस की 80,000 रुपीज की, कार एक्सपेंस 4,200. बिल्डिंग एडवांस 25,000. चैरिटीज 2,000. मीटिंग एक्सपेंस 5,400. इलेक्ट्रिसिटी 4,800. मेडिसिन 800. इन्वेस्टमेंट 20,000. इन एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 6,200. Insurance premium 1,200 and closing balance is 400. Okay, these are the information related to the receipts and payment account. Let's we discuss the additional information. What are the additional information which are given in this question? The additional information are, the first one, there are 600 members each paying a monthly subscription of 10. यानी कंपनी के पास कितने मेंबर हैं? 600 मेंबर हैं जिनका सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन कितना है? 10 रुपए. यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 120 मल्टीप्लाइड बाई 12. and 800 being in arrear for the 18-19 at the beginning of the year. और beginning में आपका arrear कितना था? You have a arrear of 800. 800 arrear था, उसमें से 600 बस मिलाया, यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है आपका? 200 रुपए अभी भी बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का. तो यू कैन सी दैट बिगनिंग में एरियर कितना था? 800 रुपए. एज यू कैन सी दैट 800 रुपीज बिंग इन एरियर फॉर 16 फॉर 18-19 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. यानी बिगनिंग में एरियर कितना था? 800. और आपको रिसिप्ट कितना हुआ है एरियर का? 600. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में देखो तो 200 रुपए स्टिल इन एरियर फॉर द प्रीवियस ईयर. And a donation for 2,500 was wrongly included in subscription of the current year. यानी करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन है 70,000, उसमें 2,500 डोनेशन का पैसा ऐड हो गया. बाय मिस्टेक उसमें क्या ऐड हो गया? डोनेशन का पैसा ऐड हो गया. Entire donation and 2/3 of the entrance fees are to be capitalized. यानी जो डोनेशन है पूरा का पूरा, यानी 17,500 डोनेशन ये है और 2,500 का डोनेशन जो कि रॉन्गली इंक्लूड हो गया सब्सक्रिप्शन में, यानी टोटल डोनेशन इज 20,000. आपका क्या है? कैपिटलाइज. कैपिटलाइज मतलब कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट को कहां दिखाते हैं? वी शो द कैपिटल रिसिप्ट इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. एंड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 months. आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है वो 3 महीने का एडवांस दे दिया है. आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है? 1,200. 3 महीने का एडवांस है और इंश्योरेंस हमेशा ईयरली होता है. दैट्स वाई इंश्योरेंस प्रीमियम का एडवांस कितना निकलेगा? 1,200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3. ओके, दैट इज द 300 इज एडवांस.
नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 थ्रू एक्रूड वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, यानी 300 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ऐसा था जो अभी भी आपको रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 3000। 2700 रिसीव्ड हुआ है, 300 अभी भी क्या है? एरियर है, अभी भी आपको पूरा मिला नहीं है। द नेक्स्ट, अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200 वाज आउटस्टैंडिंग, यानी अभी भी आपके पास जो आपने बिल ऑफ मेडिसिन परचेज किया है उसमें 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग एट एंड, एंड यू नो वेरी वेल आउटस्टैंडिंग एट एंड एडेड, ऐड होता है। नेक्स्ट, गुजराती कल्चर एसोसिएशन ओड 2000 फॉर द यूज ऑफ द सोसाइटी हाउस, यानी गुजराती कल्चर एसोसिएशन ने आपसे 2000 रुपए लिया हुआ है आपकी सोसाइटी हॉल को यूज करने के लिए। मे बी आपने उस सोसाइटी का हॉल यूज किया हो, दैट इज अ राजस्थान सोसाइटी ने, तो अगर लिया है तो इट मीन्स आपने अभी भी 2000 रुपीज आपका गुजराती कल्चर एसोसिएशन ने ओन्ड किया हुआ है फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन। आपसे क्या कह रहा है बनाने के लिए? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट, यानी इस डेट का आपको बैलेंस शीट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड ना गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो कहीं भी कैपिटल फंड इज नॉट देयर, ओके, और जब भी कैपिटल फंड नहीं गिवन है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बना ही नहीं सकते, और जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते तो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वी हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। So how we will prepare the opening balance sheet? Let's we discuss it. Thereafter we will prepare the income and expenditure account, and thereafter we prepare the closing balance sheet. Okay. So let's start the solution of this question. So opening capital fund can be prepared as follows. How we will prepare the opening capital fund? We take the all the opening balance in the opening capital fund. यानी opening capital fund में हम जितने भी opening balances होते हैं उनको include करते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से ओपनिंग फंड्स होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे? वो सारे आइटम्स जो कि ओपनिंग बैलेंस से रिलेट कर, तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लो, सबसे पहले तो ओपनिंग कैश इज गिवन, दैट इज अ 3000 in the debit side of the receipts and payment account. So cash is 3000. Okay, and additional information number 1 कह रहा है 800 being in arrear for 2018-19 at the beginning of the year, यानी साल के शुरुआत में आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 800, and outstanding subscription is a liability. Sorry, it is a assets. Outstanding subscription is a assets, and advance subscription is a liability. That is 800. Okay. Or is there anyone? Yes. If you have any doubt. No. बस यही दो वैल्यू दी हुई है, एक कैश का दिया हुआ है ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग दिया है सब्सक्रिप्शन 800। तो एसेट साइड का टोटल कितना आया? 3800, और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल कितना आना चाहिए? 3800। दैट्स वाई कैपिटल फंड कितना आएगा? ओपनिंग, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर 3800. I hope it is clear for you. And you can see that opening capital fund का आंसर भी कितना आ रहा था? 3800. So opening capital fund is 3800 and it will be fine with the help of the opening balance sheet. हमने opening balance sheet बनाई और उसकी हेल्प से पता किया कि हमारा कैपिटल फंड कितना होगा, that is 3800, और ये किस डेट का होगा? 31 मार्च 2019 को होगा ओपनिंग। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कब बनेगा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट वही रहेगा जो पहले था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा फॉर्मेट में। अब हम क्या करते हैं? एज यू नो वेरी वेल, जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था, ऑल द पेमेंट्स of the receipts and payment account will be taken as the expenditure.
and all the incomes include in the receipt side of the receipts and payment account will be taken as the income of the income and expenditure account. यानी कि जो पेमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और जो रिसिप्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन आपको यही याद रखना है कि ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, it means which are related to the single period, which are related to the during the accounting period, उसी को हम सिर्फ कंसीडर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बाकी सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पेमेंट साइड में जाना है। पहले पेमेंट साइड में आप देखो वन बाय वन आप सारी चीजें रिकॉर्ड करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे सबसे पहले दिया है ऑनोरियम टू क्लर्क, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ कार, कार खरीदा तो कार जो है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कार खरीदोगे तो इज एन एसेट्स, तो उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कार का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। आप कार का एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या कार पर्सनली यूज तो नहीं हुई थी। नो, क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कार ऑफिशियल यूज हो रही है पर्सनल यूज हो रही है, तो हम इसको ऑफिशियल यूज मानेंगे। एंड ऑल द एक्सपेंस रिलेटेड टू द कार विल बी टेकन एज द एक्सपेंडिचर of the business. Building advance, you know very well, building advance is a liability, is a assets. अगर हमने बिल्डिंग बनवाने के लिए कोई पैसा दिया है तो it is an assets. Charity, charity के लिए कितना दिया 2000, so to charity. Meeting expense, meeting expense में आपका था that is 5400. Next, electricity 4800. 4800 एंड मेडिसिन, मेडिसिन को लेकर एक नीचे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखना। मेडिसिन के लिए बोला हुआ है कि जितना आपने मेडिसिन परचेज किया दैट इज 800 एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200 वाज आउटस्टैंडिंग, यानी 200 रुपए भी मेडिसिन बिल का आउटस्टैंडिंग है। और यू नो वेरी वेल आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 800 था मेडिसिन, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है 200, सो योर टोटल बिल ऑफ मेडिसिन इज 1000। नेक्स्ट इज अ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, तो चैरिटी शो के लिए एक्सपेंस हुआ है, तो क्या आपने चैरिटी एक्सपेंडिचर रखा है? यस, चैरिटी एक्सपेंडिचर इज 6200, वेयर इज अ चैरिटी से पैसा कितना है 16800। ध्यान से देखिएगा, चैरिटी शो के लिए पैसा आया 16800 और आपने चैरिटी शो के लिए पैसा कितना लिया, पे कितना किया 6200, तो जो एक्सपेंडिचर है आप इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि आपने कोई फंड नहीं बनाया है। सो एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो आप ऐसे शो कर सकते हो, चैरिटी शो पे एक्सपेंस हुआ 6200, जबकि आपको रिसिप्ट कितना हुआ, रिसिप्ट ऑफ चैरिटी शो, चैरिटी शो के लिए पैसा आया आपको 16800, जिसमें से आपने 6200 एक्सपेंस कर दी। नेक्स्ट इज अ इंश्योरेंस प्रीमियम, यू नो वेरी वेल इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर भी एक एडजस्टमेंट गिवन था, इसको भी लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया 1200, जिसमें उसमें कह रहा है नीचे एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ में सॉरी फोर्थ में कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ, आपने 3 महीने का एडवांस दे दिया, एडवांस मतलब प्रीपेड, तो प्रीपेड कितना कर दिया है 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 300 प्रीपेड कर दिया। सो ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस कितना है इंश्योरेंस का 900। और रिसिप्ट साइड क्लियर, पेमेंट साइड क्लियर हो गया, एक्सपेंस। नाउ वी विल मूव टू द रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में जब भी हम लिखेंगे तो पहले हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे, बाई, सबसे पहला आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है 71,100, इसके लिए आप वर्किंग नोट करते हो। तो अगर मैं वर्किंग नोट करके दिखाऊं तो एक तो इजी तरीका ये है कि सब्सक्रिप्शन की आप उतनी वैल्यू ले लो
जितना कि करंट ईयर से रिलेटेड है। कितना? 600 मेंबर हैं, जिसमें कि मंथली सब्सक्रिप्शन 10 रुपीज है, तो ईयरली सब्सक्रिप्शन 120 हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है आपके पास, ठीक है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। हम डायरेक्टली चाहें तो सब्सक्रिप्शन यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत इसलिए करना पड़ेगा कि हो सकता है इसमें कोई आउटस्टैंडिंग एट एंड भी गिवन है। तो दैट्स वाई सबसे पहले हम यहाँ लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपका सब्सक्रिप्शन कितना था, कितना आपने रिसीव किया? इस साल हमने रिसीव किया 71,100। इस 71,100 में यू कैन सी दैट पिछले साल का एरियर भी कितना रिसीव हुआ है। तो एरियर किस पिछले साल का, सो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, यानी प्रीवियस ईयर का आपको कितना मिला है? ओनली 600। तो सिर्फ 600 ही माइनस करेंगे। और करंट ईयर नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है? एडवांस, एडवांस एट एंड, यानी कि नेक्स्ट ईयर का आपको मिल गया है, ये भी माइनस करेंगे। कितना? दैट इज 500। सो आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 70,000। इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए आपको कितना मिला? 70,000। अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है a donation of 2,500 was wrongly included in subscription of the current year। यानी जो करंट ईयर 70,000 मिला है, इसमें से 2,500 रुपए किस चीज का है? डोनेशन का। भाई डोनेशन की वैल्यू हमने गलती से किस में जोड़ी? सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन से घटा दो उसको, कितना आ जाएगा? 67,500। यानी आपको इस साल सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला है? 67,500। टोटल मिला था 70,000, जिसमें से 2,500 डोनेशन का पैसा था। और क्वेश्चन में ये भी क्लियरली दे रहा है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना शो करना है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 600 मेंबर्स, 10 रुपीज मंथली है, तो 12 महीने के लिए कितना होगा? दैट इज 72,000। सो आपको सब्सक्रिप्शन मिला 67,500, जबकि होना कितना चाहिए था? 72,000। होना कितना चाहिए था? सब 72,000। सो बाकी जो बचा, इट विल बी टेकन एज द आउटस्टैंडिंग एट एंड। और ये आउटस्टैंडिंग एंड क्या है? करंट ईयर से रिलेटेड है। दैट्स वाई इट विल बी टेकन एज द एसेट्स ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। यानी जो डिफरेंस आ रहा है 67,572, that is 4,500। it is your outstanding at end. I hope it is clear for you. Listen, सब्सक्रिप्शन मिला आपको 71,500 डेबिट साइड के, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। डेबिट साइड में जाके देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिखा हुआ है 71,500, जिसमें से 600 रुपए पिछले साल का है, 500 रुपए एडवांस है यानी नेक्स्ट ईयर का। तो इस साल आपका कितना मिला? 70,000। वो तो क्लियरली दिया हुआ था कि सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है, दैट इज 70,000। ओके, बट उसमें भी एक एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 2, कि डोनेशन जो 2,500 रुपए है वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर में गलती से कितना इंक्लूड हो गया है? 2,000, ये डोनेशन का पैसा। तो मैंने 70,000 में 2,500 डोनेशन का ले लिया, यानी एक्चुअल सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना होगा? एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन का पैसा होगा 67,500। और आपको मिलना कितना चाहिए था? 72,000। सर ये कैसे पता चला कि 72,000 मिलना चाहिए था? क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है, पॉइंट नंबर 1, देयर आर 600 मेंबर, 600 मेंबर है, हर मेंबर 10 रुपए मंथली देगा, यानी 12 महीने में कितना देगा? 120 रुपए, यानी 120। 120 एक मेंबर देगा, तो 600 मेंबर्स है ना, हाँ, 600 मेंबर्स कितने देंगे? 72,000। So the remaining balance will be taken as the outstanding at end, क्योंकि ऐड करोगे तभी 72,000 आएगा। अगर यही वैल्यू यहां ज्यादा आती, यहां कम आती, तो हम इसको क्या लेते? आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। जबकि होगा नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो जो 4,500 आपको नहीं मिला, मिला कितना? 67,500। मिलना कितना चाहिए था? 72,000। कितना नहीं मिला? 4,500। इट विल बी टेकन एज द आउटस्टैंडिंग एट एंड। और ये कहां शो होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जैसे आपने ये दिखाया ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2 में गिवन था।
सॉरी, एडजस्टमेंट नंबर 1 में ही गिवन था कि 800 बिगनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है डोनेशन। डोनेशन है आपका 17,500 जो रिकॉर्ड है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और 2,500 जो सब्सक्रिप्शन में गलती से ऐड हो गया था। तो टोटल डोनेशन विल बी 20,000। 17,500 प्लस 2,500, टोटल डोनेशन इज अ 20,000। कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्यों? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। इंटायर डोनेशन, सारा डोनेशन हम कैपिटल रिसिप्ट मानना है। उसी तरह से एंट्रेंस फीस का कितना कैपिटलाइज मानना है? 2/3। तो कितना रेवेन्यू मानना है? 1/3। तो एंट्रेंस फीस जस्ट नीचे दी हुई है, किसके? डोनेशन के जस्ट नीचे गिवन है एंट्रेंस फीस। सो एंट्रेंस फीस का 2/3 दिखेगा बैलेंस शीट में, और 1/3 कहां दिखेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 5,000। बाकी 10,000 कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद दिया है एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। सो यू नो वेरी वेल एंडोमेंट फंड इज अ कैपिटल रिसिप्ट, तो उसको भी हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और रेंट ऑफ द हॉल, ये जाएगा रेंट ऑफ हॉल। हॉल का रेंट कितना मिला था आपको? 8,700। एंड ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी ने आपको ग्रांट दिया, so it is your liability, it is a specific grant. Proceed from charity show, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। सनरीज 1200, सनरीज इनकम कितनी हुई थी? 1200। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट कितना मिला है इन्वेस्टमेंट पे? टोटल मिला है आपको 2,700, और जबकि उसके लिए एडजस्टमेंट बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 थ्रो एक्चुअली वाज नॉट accrued was not actually received। इसका मतलब कि जो 300 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है ना, वो अभी आपको मिला नहीं है, और accrued को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 3,000। ओके, द वन मोर एडजस्टमेंट आर लेफ्ट हियर, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 7। गुजराती कल्चर एसोसिएशन ओड 2,000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल। यानी गुजराती कल्चर एसोसिएशन ने मेरा हॉल यूज किया था, और उसका अभी भी 2,000 रुपए बाकी है, यानी अभी उसने 2,000 रुपए दिया नहीं है मुझे। तो रेंट ऑफ द हॉल आपको टोटल मिला 8,700, जिसमें 2,000 अभी भी क्या है? एक्रूड है, आपको मिला नहीं है। तो टोटल रेंट ऑफ द हॉल कितना हो गया? 10,700। अब करोगे क्या? इधर ऐड करोगे और इधर ऐड करोगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको क्या शो करोगे? सरप्लस। ओके, सो मैंने इसको ऐड कर लिया है, एंड वी फाइंड द सरप्लस इज 78,200। ओके, so I hope it is clear for you. If you have any doubt, so please ask me. Let's we move to the next question, which are related to the second chapter of part A accountancy, that is a fundamental of partnership firm, that is a which is known as the first chapter of part A वॉल्यूम 2, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी ये बेसिकली सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का। और क्वेश्चन इज दैट पुनीत एंड अक्षरा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। पुनीत और अक्षरा दो पार्टनर है 2:3 में। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019। और ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इज अ लायबिलिटी, पुनीत का है 90,000 कैपिटल एंड अक्षरा का है 1,10,000 कैपिटल, एंड सन्ड्री एसेट इज 2 लाख। The profit rupees 40,000 for the year ended 31st March 2019 were divided between the partners without allowing interest on capital 5% and commission to Akshara 1,000 per quarter। यानी जो प्रॉफिट 4,000 है उसे आपने पार्टनर को दे दिया बिना कुछ चार्ज किया। और उसका क्या क्या चीजें आपने चार्ज नहीं की हैं? आईओसी 5% से आपने चार्ज नहीं किया है, और कमीशन जो देना था अक्षरा को 1,100 रुपए 1,000 पर क्वार्टर, वो भी आपने प्रोवाइड नहीं किया। एंड द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वेयर पुनीत 2,500 पर मंथ एंड अक्षरा 10,000 पर क्वार्टर। शो योर वर्किंग क्लियरली
पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट क्वेश्चन उतना टफ है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बैलेंस शीट बना के दिया है कि व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो यू नो वेरी वेल कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो हमेशा किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। एंड देयर आर टू पार्टनर्स, अक्षरा एंड पुनीत। ओके, सो 18 में अगर आप देखो तो आपने क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल कब की, 31 मार्च 2019 की, अक्षरा एंड पुनीत की। कैपिटल इज अक्षय एंड पुनीत की कैपिटल इज 90,000 and 1,10,000। अक्षरा एंड पुनीत, सॉरी इट इज अ पुनीत एंड अक्षरा। पुनीत की कैपिटल है 90,000 एंड अक्षरा की कैपिटल है 1,10,000। इसमें कह रहा है हमें ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट को माइनस और ड्राइंग को प्लस करना पड़ता है। बेसिकली आपने प्रॉफिट कितना था, 40,000, और उनका पीएसआर क्या था, 2:3। 40,000 को आपने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में 2:3 में, क्योंकि उनका रेशियो 2:3 था। तो 2:3 यानी 5, 16 एंड 24 आपने डिडक्ट कर दो। और उनका ड्राइंग कितना था, पुनीत का था 2,500 पर मंथ, यानी 2,500 पर मंथ का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 25 एंड 5 30,000, और ये हो जाएगा आपका 10,000 per quarter। It means 10,000 multiplied by 4, that is 40,000। So अगर हम इतना कर लेंगे तो we have to find the opening capital। ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल जाएगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी, 93,120, 120 में से 16 गया, 1,04,000। ओके, और यहां पता करो तो 110, 40, 150, 150 में 24 गया तो 126। So this is the opening capital of Puneet and Akshara as on 31st April 2009। ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमसे गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने कमीशन नहीं दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो अब हम करेक्ट वे अपनाते हैं। सबसे पहले you can see that first of all we give the interest on capital। किसको देंगे, अक्षरा एंड पुनीत को। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज अ 5%। सो किसका 5%, 1,04,000 का 5%, दैट इज 5,200, एंड दिस इज अ 6,300। ओके, यस, एंड टोटल विल बी 005, 11,500 इज द टोटल आईओसी जो हमें देना है। दूसरा हमें कमीशन देना था अक्षरा को। अक्ष सॉरी ये रेसिप्रोकल हो गया, ए बी लिख दिया। पुनीत को मिलना चाहिए था, पुनीत एंड अक्षरा, सॉरी फॉर दैट, पुनीत एंड अक्षरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस। एंड मुझे अक्षरा को कमीशन देना है, सॉरी अक्षरा को हमें कमीशन देना है, टू अक्षरा। कितना देना है, 1,000 पर क्वार्टर। तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4,000, ये हो जाएगा 4,000। ओके, अब आप प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, प्रॉफिट कितना है आपका 40,000। उस 40,000 में आपके पास से खर्चा कितना हो गया, 15,500। जितना बचेगा दैट इज 24,500। ये आप किस रेशियो में बांटोगे, 2:3 में। और जब ऐसे ही इसको बांट दोगे तो पता चल जाएगा कि इनको कितना मिलना चाहिए था एक्चुअल, कितना इनको रिसीव होना चाहिए, व्हाट इज हिज एक्चुअल कैपिटल। सो वी कैन फाइंड दैट विद द एडजस्टमेंट is 24,500
into 2/5, that is 9,800, and 3/5, 14,700. ओके, और इसमें इनकी ओपनिंग कैपिटल ऐड कर दो, क्योंकि यू नो वेरी वेल ओपनिंग कैपिटल से ही पता चलेगी कि इनकी एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल क्या होनी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल क्या होनी चाहिए थी कि उसमें ये सारी चीजें ऐड होनी चाहिए थी। और ड्राइंग, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें से उनकी ड्राइंग को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पुनीत की ड्राइंग कितनी थी, 30,000, और अक्षरा की ड्राइंग कितनी थी, 40,000, माइनस कर दो। और ओपनिंग कैपिटल क्या थी, 1,04,000 एंड 1,26,000। तो इनकी एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, जो इनकी रियल क्लोजिंग कैपिटल थी। रियल क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है यही कैपिटल उनकी एक्चुअल है। 5,400 प्लस 9,800 प्लस 1,04,000 माइनस 30,000। सो अक्षरा की एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए थी 89,000, और पुनीत की और अक्षरा की बात करें तो 6,300 प्लस 4,000 प्लस 14,700 प्लस 1,26,000 माइनस 40,000। तो इसका होना चाहिए था 1,11,000। सो अगर आप मैच करो, सो यू विल फाइंड दैट पुनीत की 1,000 कैपिटल एक्स्ट्रा है और अक्षरा की 1,000 कैपिटल क्या है, कम है। सो अगर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, सो वी फाइंड दैट कि पुनीत और अक्षरा का जो नेट इफेक्ट है वो पुनीत के लिए 1,000 माइनस है और अक्षरा के लिए 1,000 प्लस है। सो दैट्स वाई पुनीत की कैपिटल क्या होगी, डेबिट, एंड अक्षरा की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। एंड वी पास द जर्नल एंट्री दैट इज पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षरा's capital 1,000, 1,000, and this is your answer. Okay, so I hope today we cleared all the questions very easily. आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।